Welcome, beloveds, to our Bhagavad Gita class, and this is our introduction class. So, we will cover 5 points in today's session. First, who is the teacher or speaker in Bhagavad Gita, and who is the student or devotee in Bhagavad Gita, and what that represents for us. Second, self introspection, in which we will see how to rightly question the suffering so that it takes us on to higher level of awareness. Third is what constitutes material nature and the five basic truths of the material nature of this cosmos. And fourth is about our consciousness, the right position of our consciousness. And last is we as jiva are as conscious as lords. So, as Lord. So, let's start with a prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Saksha Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. I offer my obeisances to Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasa, and all others in the line of devotion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, who is the teacher and speaker in Bhagavad Gita? Of course, Lord Shri Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, Ishvara Bhagavana. And Arjun is representing all of us. So, Arjun is the student and devotee of Lord Shri Krishna. He is representing all of us. And the place where the war has happened, that is the battlefield of Kurukshetra. All of us are in our own battlefield of Kurukshetra, and that is this, our own minds. So, we as Arjuna or Arjun as us is representing our difficulties, our challenges, our confusions, our mental problems, mental disorders, deteriorating mental conditions, and the physical symptoms, cognitive and behavioral effects, everything which has to do with the battlefield, meaning our mind right here. So, that is how we are going to understand. And unless one puts oneself in a position of surrender by perfecting or by taking efforts on the path of devotion or bhakti, meaning surrender, one cannot understand the absolute truth or knowledge. Now, whether you are a believer of God or not, like I don't believe in God because I know God, like God is, that's it, full stop, period. But whatever position or relationship you hold with divine, everyone, each one of us has a personal relationship with God. There is no right or wrong to it. But so keeping that, respecting that, whatever position or relationship you hold with the divine, there has to be an element of devotion, friendship, and surrender for us to gain the right perspective or to understand basically the absolute truth or knowledge. और आगे के लेसन्स में हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट पे अर्जुन सरेंडर्स टू कृष्णा, मतलब अर्जुन कृष्ण के कज़िन है एंड फ्रेंड है, बट वो कृष्ण को अपना गुरु मान के और अपने आप को उनका भक्त, एक डेवोटी मानने के बाद ये ज्ञान भगवद गीता का उनको दिया जाता है. सो दैट वी विल सी. फॉर नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि एक डिवोटी के क्या रिलेशनशिप होता है विद गॉड. सो दैट इज़ इन 5 ways. फर्स्ट इज़ इन रिलेशनशिप विद गॉड इन अ पैसिव स्टेट. सो पैसिव स्टेट मतलब कि आप एक्टिवली कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे हो टू अंडरस्टैंड योर रियल सेल्फ और टू अंडरस्टैंड गॉड, एंड लाइक एवरीथिंग इज़ देयर फ्रॉम अ डिस्टेंस कि हाँ ठीक है, चलो है तो है, नहीं है तो नहीं है,
एंड एक राइट नॉलेज या वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं है. सो ज़्यादा रिजेंटमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और ब्लेमिंग गॉड रह सकता है. मतलब अगर कुछ भी है तो गलत हो रहा है तो जैसे भगवान की वजह से हो रहा है. नेक्स्ट होता है एज इन एक्टिव स्टेट. तो एक्टिव स्टेट में भी यहाँ पे डिवोटी समझने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं राइट एफर्ट्स ले रहा है टू नो गॉड बियॉन्ड दिस रिलीजन और रिचुअल्स. बट वो एक पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए वो जो भी साधना या पाथ एडॉप्ट करके वो करे, दैट इज़ एन एक्टिव स्टेट. नेक्स्ट है एज अ फ्रेंड. सो हम गॉड को, हम उनको अपने फ्रेंड की तरह देखते हैं. जैसे अर्जुन कृष्णा को इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एज अ फ्रेंड ही समझता था. हम गॉड को देख सकते हैं एज अवर बिलवेड पेरेंट्स. सो बिलवेड मदर, फादर, एंड उस तरीके से उनको समझते हैं. जैसे कि अगर बहुत ही केयर, फॉरगिवनेस, समझ, कंपैशन और प्यार की ज़रूरत है तो हम गॉड को एज अ मदर देखेंगे, क्योंकि वो एक मदर हमें इस तरीके से देख सकती है और अपना सकती है. और जब हम समझना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली हम क्या डिसीजन ले, सही गलत क्या है, और हमें वो प्रैक्टिकल गाइडेंस, रीजनिंग और लॉजिक की ज़रूरत है, तो हम गॉड को एज अ फादर, एज अ बिलवेड फादर की तरह समझ सकते हैं. एंड लास्ट रिलेशनशिप है विद गॉड इज़ एज अ लवर. अब ये जो 5 डिफरेंट रिलेशनशिप्स है विद गॉड, वन इन एक्टिव स्टेट, पैसिव स्टेट, एज अ फ्रेंड, पेरेंट एंड लवर, तो ये सब ट्रांसेंडेंटल वे में हमें करना होगा. जैसे कि अर्जुन की जो फ्रेंडशिप थी गॉड के साथ, वो एक ट्रांसेंडेंटल फ्रेंडशिप थी. ट्रांसेंडेंटल मतलब कि आप कोई अपने ईगो में, आई, मी, माइन, अहंकार में, एरोगेंस में उस तरीके से नहीं हो, बट ये एक सेल्फलेस इटर्नल रिलेशनशिप है जहाँ पे आप एक ट्रूथ और नॉलेज को एज इट इज़ जो है वो समझ रहे हो. सो दैट इज़ ट्रांसेंडेंटल फ्रेंडशिप. So one has to be in a direct relationship with God to understand this truth, this knowledge. And like I said, each one of us have our own personal relationship with God. But जहाँ पे doubt है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब ट्रूथ के लिए गॉड की तरफ, और कंप्लीट सरेंडर नहीं है, या वो डिवोशन नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो भक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अधूरापन रह जाता है. सो अर्जुन का जो है रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज़ इन्वोक बाय द परफेक्शन ऑफ डिवोशन, जो उसने किया, मतलब अपने आप को सरेंडर करके. एंड हम कहीं ना कहीं भूल गए कि लाइक हु वी आर, what is this life for, what is the purpose of life, or what is our relationship with that invisible energy or force, or with the divine, whatever name you wanna call, or with the spirit or the soul that we are. अगेन यहाँ पे भी कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते, बट कहीं ना कहीं एक जो इनविजिबल फोर्स एंड पावर है, और हमारा उसके साथ का रिलेशनशिप, और हमें एक्चुअली क्या करना है और क्या करना चाहिए, ये सब के लिए एक राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज होना चाहिए. तो अनलेस वन परफेक्ट्स वन सेल्फ इन दिस एब्सोल्यूट ट्रूथ और नॉलेज, और विद गॉड, विथ डिवोशन, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. एंड हम ये अपना पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब कि जो स्वरूप है विद गॉड, वो रिवाइव कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग आवर पोजीशन, आवर मेन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ आवर सेल्व्स. तो उसको कहते हैं स्वरूपा सिद्धि. जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचते हमें कुछ कहीं ना कहीं समझ नहीं आता. सो पर्पस ऑफ भगवद गीता is to free mankind, to liberate mankind from this suffering, from this delusional world. अब ये जो वर्ल्ड है, that is a dream, everything is a dream. ये कुछ भी रियल नहीं है, क्योंकि रियल एंड ट्रूथ वो है जो रहता है. बट वी आर in a world where everything is transient, meaning nothing is permanent, everything is temporary. तो यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो भी हो चुका है, या जो भी आने वाला है, वो सब कुछ एक मिराज की तरह है इन अ डेजर्ट, कि आप कितना भी चेस करो और उसके पीछे आगे जाते रहो, उसको चेस करते रहो,
बट वो रियलिटी नहीं है, इट इज़ अ मिराज। ठीक है, जैसे कि एक ग्लास होता है, तो ग्लास इज़ अ ग्लास, दैट इज़ द रियलिटी। अब ग्लास को आप अलग अलग शेप में ट्रांसफॉर्म करके उसका यूज़ कर सकते हो, कि अगर जैसे कि ग्लास सिलेंड्रिकल ऐसे शेप में है तो इट कैन होल्ड लिक्विड इनटू इट। अगर ग्लास को आप एक डोर शेप में कर रहे हो तो वो एक उसका डोर का शेप हो जाता है, या विंडोज़ में है तो वो विंडो के शेप में होगा और उस तरीके से हमें फैसिलिटी देगा। बट ग्लास इन रियलिटी इज़ अ ग्लास। उसी तरीके से ये जो वर्ल्ड है और वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही है, दैट इज़ लाइक अ मिराज, इट्स ऑल फॉल्स, इट्स ऑल ड्रीम, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ले रही है, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ ले रही है, different different phases and times है, but it's not real. And what is real is the consciousness, the awareness that we have about everything. So like whatever you are perceiving, understanding and engaging yourself in, that is not who you are, but the one who is observing, वो जो awareness है और वो जो consciousness है, that's what we are. So भगवद गीता का पर्पस ये है to free us from this liberation from this material existence, so we can understand that we are the soul, the higher self, okay, and that we are one with God. Don't worry Zada, I hope it is not becoming heavy, but I'm just trying to break it down in the introduction part, so that when we begin with the lessons we both are on the same page. Of course हमारे experiences समझने के अलग हो सकते हैं, पर मैंने जैसे कि फर्स्ट सेशन में कहा था कि भगवद गीता को आप अपनी लाइफ के मैनुअल की तरह लो। ठीक है, आप क्या चीज़ में मानते हो, क्या चीज़ में नहीं मानते, हम वहाँ यहाँ पे ये डिस्कस करने नहीं बैठे। लाइक आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके, सो देर इज़ नो जजमेंट फ्रॉम माई साइड और शुड नॉट बी फ्रॉम योर साइड एज वेल, बट हम सिर्फ समझ रहे हैं कि how can we gain mastery over our mind, over this battlefield, and live life full of joy and with full of awareness. That's the main point जो अभी मैंने awareness वाला कहा. Next thing कि humanity start ही होती है right inquiry के साथ, तब तक तो आप unconscious हो, है ना। तो जैसे कि जब तक कोई अपने सफ़रिंग को या अपने एक्सपीरियंसेस को क्वेश्चन नहीं करता, मतलब कि वाई मी, वाई दिस हैपन्स टू मी, ये विक्टिमाइजेशन है, ये तरह के क्वेश्चनिंग नहीं, बट कि ओके what is in me that is attracting such pain or challenges, or now that this experience has happened, what is in me that has got triggered, and why am I suffering? So this question will lead you to the solution of the suffering. Now that the suffering is there and I am in pain and I am experiencing it, let me look for the solution to it. इसने किया, उसने किया, मेरे साथ ही क्यों होता है? We get into this passive blaming state. It's not going to work for us. और यहाँ पे तो humanity शुरू भी नहीं होती. क्यों? क्योंकि human ही एक humans ही वो living entities है जिसके पास वो फ्री विल तो है ही, तभी हम इतने परेशान रहते हैं। अगर हमें भी एनिमल्स की तरह या किसी की तरह एक फिक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड या लिमिटेड सिस्टम या फंक्शनिंग दे दिया होता तो हम इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं, है ना। बट बिकॉज हमारे पास फ्री विल है तो हम जो चाहे सोच लेते हैं, जो चाहे बोल देते हैं, जो चाहे कर लेते हैं, एंड हर एक का बहुत ही वंडरफुल साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, राइट। सो दैट आई विल अंडरस्टैंड एज अ साइकोलॉजिस्ट। बट दूसरा ह्यूमैनिटी यहाँ तक क्यों नहीं है, क्योंकि हम कॉन्शियस है और कोई इतना कॉन्शियस नहीं है। लाइक वी कैन थिंक अबाउट द थॉट्स वी आर थिंकिंग, like okay, I'm having this thought, so you can be conscious of your thoughts, of your behaviors, of your feelings, of your sensation, each and every experience. So using this level of awareness or consciousness in the right way, and therefore asking right questions or doing the right inquiry into one's suffering, one cannot understand one's constitutional position as the higher self or the soul or कॉन्शियस बेसिकली, क्योंकि यूजुअली हम अदर साइड पे होते हैं।
तो ये राइट टाइप ऑफ इंक्वायरी की ज़रूरत है ताकि हम अवेकन हो सके और सही वे में हम अपने माइंड का, अपने बैटलफील्ड का कंट्रोल ले सके, जो अर्जुन हमारे लिए काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है 5 बेसिक ट्रूथ्स जो भगवत गीता में समझाए गए हैं। फर्स्ट है ईश्वर। ईश्वर मतलब गॉड, भगवान, जो सुप्रीम कंट्रोलर है। सेकंड है जीवा, द लिविंग एंटिटीज़ जो हम है, दैट आर कंट्रोल, सो वी आर कंट्रोल लिविंग एंटिटीज़। कंट्रोल और कंडीशन, क्यों? क्योंकि हम जो रह रहे हैं ये मिराज में, ये ड्रीम लाइक स्टेट में, तो हम प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं, जो विच आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मिनट। बट हम जो भी करते हैं या हमारा जो भी रिस्पॉन्स है वो ये मटेरियल नेचर या प्रकृति की पोजीशंस के हिसाब से हो रहा है, मतलब 3 गुणास के हिसाब से हो रहा है। सो फर्स्ट बेसिक ट्रूथ इज ईश्वर, द सुप्रीम कंट्रोलर। सेकंड इज जीवा, द कंट्रोल्ड लिविंग बींग्स। थर्ड इज प्रकृति, जो ये मटेरियल नेचर है। फोर्थ इज टाइम, काल। एंड फिफ्थ इज कर्मा, मीनिंग एक्टिविटी। अब ये जो मटेरियल नेचर है वो 3 क्वालिटीज़ या 3 गुना से बना हुआ है, मतलब ये 3 गुना से वो सस्टेन्ड है। फर्स्ट इज सत्व, सेकंड राजस एंड थर्ड तामस। तो सत्व इज़ द मोड ऑफ गुडनेस, जो भगवत गीता सिखाएगी कि कैसे तुम्हें ये गोल पे पहुंचना है, एंड देन बियॉन्ड दिस, सो मोड ऑफ गुडनेस। राजस इज़ मोड ऑफ पैशन एंड तामस इज़ मोड ऑफ इग्नोरेंस। अगेन गीता में काफ़ी डिटेल में समझाया भी गया इसके बारे में, बट अभी हम ब्रीफली देख रहे हैं। अब ये जो 3 मोड्स है उस हिसाब से हमारा फंक्शनिंग एंड रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये 3 गुणास है और काल है, तो हम जो भी कर्मा कर रहे हैं, मतलब हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज़ इन रिस्पॉन्स टू दिस 3 गुणास and it is happening in the time, the kal we are in. So for example, अभी मैं ये जो कर रही हूँ तो मेरा इसमें इंटेंशन क्या है कि मैं खुद भगवत गीता को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही हूँ और मैं वही अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है? टू शेयर द गुड नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स और टू गिव द मैसेज ऑफ गॉड इन अ वे जहाँ पे हम हर कोई रिलेट कर पाए, राइट? तो ये मेरा इंटेंशन है। तो ये कहाँ पे आता है, कौन से गुना में आता है? ये आता है सत्व में, मोड ऑफ गुडनेस में। और ये कौन से टाइम पे हो रहा है? अभी इस टाइम पे हो रहा है। तो ये मेरा टाइम है, ये मेरा काल है, और ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दैट इज़ द कर्मा, द एक्टिविटी विच आई एम डूइंग, विच इज़ रिकॉर्डिंग एंड लेटर ऑन अपलोडेड, राइट? एंड देन चेकिंग how it is going, okay, and making reels out of it, fine. So this is the activity. तो हम जो भी सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं एंड कर रहे हैं, मतलब हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स जो भी हम करते जा रहे हैं बेसिकली इन एट अ थॉट लेवल और एट अ बिहेवियर लेवल, वो सब कुछ किस हिसाब से होता है या कंट्रोल होता है? दैट इज़ इन रिस्पॉन्स टू 3 गुना, सत्व, राजस, तामस, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। और वो जिस वक्त में हो रहा है दैट इज़ द टाइम, दैट रिप्रेजेंट्स द टाइम, द काल। और जो कर रहे हैं दैट इज़ द कर्मा, द एक्टिविटी। ओके, नाउ सो वॉट एवर वी आर सफरिंग और वॉट एवर वी आर एन्जॉइंग, दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर कर्मास और एक्टिविटीज़। और स्क्रिप्चर्स हमें ये सिखाते हैं कि जो भी आप अभी इस मोमेंट में अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, whether it is good or bad, well, see, my guru has taught that situations in itself are neutral, right? अब आप किस गुना में हो और उस टाइम आप क्या कर्मा कर रहे हो, कौन से काल में, that is actually deciding the outcome of it. तो कभी कभी ना हम ना क्वेश्चन नहीं करते कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, या फिर ये मैंने काफ़ी बार किया है टू बी ऑनेस्ट, एंड बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड। एंड ऑल्सो कि लाइक मेरे साथ ही क्यों हो रहा है जो विक्टिम पोजीशन में है, या फिर हमारे इंटेंशंस फिर भी अच्छे रहे होते हुए लेकिन
फिर भी हमारा काम नहीं होता, या फिर जो केसेस मैं यूजुअली देखती हूँ मोस्टली जो रिजेक्शन साइड पे होता है कहीं ना कहीं, या फेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, भले कितना हार्डवर्क या वो किया हो, या otherwise also the place we are born in, the relationships we share, or whatever position we are at in our lives at present, वो सब कुछ ऑफ कोर्स हमारे कर्मा के हिसाब से, बट सब कुछ इस लाइफ का रिलेटेड भी नहीं होता। पिछली कई लाइफ टाइम से भी कुछ चीज़ें आई होती है। तो बेसिकली ये लाइफ टाइम में सपोज़ कि अगर मैं इतने साल जीने वाली हूँ, ओके, तो उस लाइफ टाइम के लिए मुझे क्या कर्मास क्लियर आउट करने हैं वो मुझे दिए दिए गए होते हैं। means again, like it gets transferred, it has got transferred in my this lifetime, plus at present मैं क्या कर्मा कर रही हूँ in response to this goodness, वो मेरा नेक्स्ट कर रहा है। अब टू मेक इट मोर एट दिस मटीरियल लेवल, लेट्स से कि आपको पीएचडी करनी है, ठीक है, तो अभी तक ऑफकोर्स आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो वो यहाँ तक का आपका कर्मा रहा है। अब पीएचडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है कि रिसर्च वर्क होना चाहिए, आपके पेपर्स पब्लिश होने चाहिए, और आप किस टॉपिक पे, किस मैटर पे आप अपना रिसर्च करना चाहते हो, तो वो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ साथ एंट्रेंस है या आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन ले रहे हो, तो दिस इज़ द फ्यूचर नो दैट यू वांट टू क्रिएट। तो उसके लिए आपको पास्ट में आप इतने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्लियर है और आपने इंटर्नशिप्स किया है, वर्क किया है। प्रेजेंटली आप जो प्रिपेयर कर रहे हो एंट्रेंस के लिए, तो ये आपका प्रेजेंट कर्मा है, और ये आप कर पा रहे हो बिकॉज पास्टली आपने उतना एफर्ट किया है सही वे में जो कर पा रहे हो, एंड दैट इज़ डिसाइडिंग योर फ्यूचर, दैट इज़ द पीएचडी पार्ट ऑफ इट। तो उसी तरीके से हम अभी जो भी सफ़र कर रहे हैं या जो भी एन्जॉय कर रहे हैं, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल द कर्मास that has been done by us in response to this three gunas, and where it has been done in काल, in time। अब इसमें क्या है कि ये जो 5 बेसिक ट्रूथ्स जो मैंने आपको बताए, उसमें से 4 आर इटर्नल, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा, वो रहेगा एज इट इज़। सो दैट इज़ ईश्वर, जीव मतलब कि हम, प्रकृति दैट इज़ दिस मटीरियल नेचर, एंड काल इटर्नल टाइम। तो ये 4 इटर्नल है, वो रहेंगे जैसे अभी जो भी है ये चीज़ रहेगी, क्योंकि हम मर भी जाते हैं तो बॉडी हमारा मरता है, राइट, एंड देन वी टेक ऑन टू न्यू बॉडी, न्यू आइडेंटिटी, सो दिस थिंग विल गो ऑन। लाइकवाइज इट इज़ फॉर मटीरियल नेचर एंड द टाइम। अब जो 5th ट्रूथ है विच इज़ कर्मा, मतलब कि एक्टिविटी, इसको आप चेंज कर सकते हो, एंड दैट्स वेयर आवर पावर, our free will, our level of awareness and consciousness comes in। मतलब हम कोई कठपुतली या नहीं है, हमारे अच्छे या ख़राब कर्मा के भी, या लाइफ में हमारे साथ जो भी हो रहा उसका भी। एक चीज़ जो मैंने कहा ना कि मैंने सीख लिया, वो ये कि जो हो रहा है, एंड लाइक आई सेड, आपका क्वेश्चनिंग बहुत मैटर करता है। आप तब तक सफ़रिंग में ही रहोगे और तब तक कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी शुरू नहीं होती जब तक आप यू चूज़ टू बी अनकॉन्शियस, टू बी हैबिचुअल एंड टू बी विक्टिमाइज्ड, मतलब कि आप राइट इंक्वायरीज ही नहीं कर रहे हो। एंड द मोमेंट यू गेट इन टू राइट इंक्वायरी ऑफ योर सफरिंग, ऑफ योर पेन, एंड दैट्स हाउ यू चेंज योर कर्मा। सो सेम थिंग कि जब कुछ चीज़ें हुई, आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ राइट क्वेश्चंस, एंड उस प्रेजेंट मोमेंट में I have the control over my karma, I have the control over whatever I choose to do, I mean choose to think, feel, act, behave, my intentions। तो वहाँ पे जैसे जैसे मैं शिफ्ट लाती गई, वैसे वैसे थिंग्स ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग। ये तो सब रिपल इफेक्ट ही होता है। सो ये जो 4 चीज़ें मैंने कही ना, ईश्वर मतलब भगवान, जीव मतलब हम, प्रकृति मटीरियल नेचर, एंड काल टाइम, ये इटर्नल है। लेकिन जो कर्मा है, एक्टिविटी, उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो अगेन वी आर द सफ़रर और द एन्जॉयर ऑफ आवर ओन कर्मास और एक्टिविटीज़, बट हम उसको चेंज कर सकते हैं व्हेन यू
step into the absolute truth or you perfect yourself in right knowledge. अब ये knowledge क्या है, इसको उसको ब्लेम कर देना या अपने लॉजिक या रीजनिंग से मैनिपुलेट कर देना, या सिचुएशंस को अपने हिसाब से जो भी कर देना, इसको नॉलेज नहीं कहते, क्योंकि ये भी तो ट्रांजेंट ही हुआ ना, ये भी टेम्पररी हुआ. राइट नॉलेज एंड ट्रूथ वो है जो वैसा का वैसा है. अब जैसे कि भगवत गीता की टीचिंग्स है, ठीक है, यू फाइंड आउट द हिस्ट्री के कितने साल पहले हुई थी, कहाँ, मतलब क्या था क्या नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट. पर सही वे में इफ़ यू लुक एट इट, ये सब कुछ पहले, कोई भी आप रिलीजन ले लो, कोई भी स्क्रिप्चर्स ले लो, ये तो कल के कल हुआ नहीं है ना. ऐसा तो नहीं है कि कल हुआ और हम आज सीख रहे हैं. पर ये जो टीचिंग्स है वो आज भी रेलिवेंट है. अर्जुन जो अपनी पोजीशंस बता रहा है, जो हम आगे के लेसन्स जब स्टार्ट करेंगे देखेंगे, तो वो अपनी सारी एंग्जाइटी बता रहा है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, कि मैं क्या करूँ, ये करूँ का ये या ये करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम लूजिंग माई सेल्फ, आई एम फीलिंग इमोशनली वीक, आई एम फीलिंग वेरी वेरी एंक्शियस एंड डिप्रेस्ड, I cannot think clearly, I cannot concentrate, my relationships are deteriorated, I feel like committing suicide because I feel hopeless, there is nothing good for me. ये सब कुछ इनफैक्ट तब से ज़्यादा अभी तो बढ़ रहा है. एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन गिव यू द राइट एविडेंस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट बिकॉज आई एम सीइंग इट एवरी डे. एंड हमारे मेंटल इलनेसेस, मेंटल कंडीशंस डे बाय डे ज़्यादा सफ़र ही कर रही है कहीं ना कहीं. तो इसको ट्रूथ कहते हैं, क्योंकि तब से लेकर अभी तक टीचिंग्स जो है, जो भी ये भगवत गीता का जो ट्रूथ है वो आज भी रेलिवेंट है. तो इसको ट्रूथ एंड नॉलेज कहते हैं. तो जब तक हम कर्मास को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक हम ये राइट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में नहीं आते. एंड दैट हैज़ टू डू विथ हु वी आर और हु गॉड इज़ एंड वाई आर वी हियर, what is the meaning of this suffering and how can I change it, where I need to correct myself and what knowledge I need to have about myself and my identity. And that leads us to the next point, which is our consciousness. तो हम जो जीव है, द लिविंग एंटिटी, वो हम उतने ही कॉन्शियस है जितने भगवान कॉन्शियस है. अब डिफरेंस ये है कि अगर आप भगवान में मानते हो तो आप मानोगे कि वो हम हमारे पहले के, अभी के, आगे के हर चीज़ को लेके कॉन्शियस है, उन्हें पता है. पर हम अभी कॉन्शियस है अपनी इस बॉडी के लिए. लाइक आई नो कि दिस इज़ निकिता, this is what Nikita is, this is what she is doing in terms of profession, this is where she belongs, has to do with culture, nation and so on. Like she is the mother of a dog, all of this thing, and this is her profession. लेकिन हमें ये समझना है कि हम जो है वो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, हम हायर सेल्फ है, सोल है. और अगर आप सोल से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो ये तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे कि आप एक अवेयरनेस हो, आप कॉन्शियसनेस हो. तो अगर आपके दिमाग में जैसे कि कुछ भी चल रहा है एंड इफ़ यू पुट योर सेल्फ असाइड एंड एक आप एक थर्ड पर्सन की तरह अपने आप को देखोगे, तो यू विल थिंक कि I am the one who is thinking. Like you cannot say I am this mobile, I am this earphone, I am this green colored shirt, or I am this book. You will say I own this mobile, I am wearing this colored shirt, or I have this notes or book on my lap. You will not say I am this lap, or I am this book, or I am this phone. You will say I have this phone, or I own this thing, or I possess this thing. Got it? तो ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है ना कि आई एम मोबाइल, आई एम बुक, आई एम दिस शर्ट. पर हम जब ये रियल मानते रहते हैं, दैट मीन्स कि हम अपने सात्विक पोजीशन से, हम अपने हायर सेल्फ से दूर जा रहे हैं. और जब हम समझ लेते हैं कि वी एज जीव आर कॉन्शियस कि आई एम नॉट दिस बट आई ओन दिस, एंड देयर इज़ नो deep level of attachment to it or significance to it, then we are stepping into the truth, into the knowledge कि हम एक higher self है, हम एक conscious beings है. और ये world क्या है, which is dream, whatever happens in the world is a dream. जैसे कि आपने कोई अच्छा ड्रीम देख लिया या it was a nightmare,
और जैसे ही आप उठते हो यू फील सच ए रिलीफ, नो ओ इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। भले वो एक नाइटमेयर था, बुरा था, पर आप उठ के रिलैक्स हो जाते हो। ड्रीम में शायद आप घबरा जाओ और आपको फियरफुल सेंसेशंस हो, पर जैसे ही उठते हो आप अवेयर होते हो ना, ओ दैट वॉज अ ड्रीम। You don't become that dream, you realize that that was a dream, so that is your consciousness, that is the knowledge. उसी तरीके से whatever is happening in the world और whatever you are experiencing, ये भी एक ड्रीम लाइक स्टेट में है, जिसको हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लेनी है, बट कॉन्शियस रहना है. ऑफ कोर्स वी हैव टू फंक्शन इन द वर्ल्ड एंड वी हैव टू बी सक्सेसफुल इन द थिंग्स वी आर डूइंग, बट कौन सी कॉन्शियसनेस में कर रहे हो वो हम सीखेंगे भगवद गीता के थ्रू. अब अभी के लिए जैसे कि हमारी कॉन्शियसनेस काफ़ी कंटामिनेटेड है, मैंने जो एग्जांपल्स दिए, आई एम मोबाइल, आई एम दिस पोजीशन, आई एम दिस प्रोफेशन, आई एम दिस मनी, आई एम दिस इन अ रिलेशनशिप, ये सब कंटामिनेटेड है एंड फॉल्स ईगो है, क्योंकि ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारे ईगो को और ज़्यादा कंटामिनेट कर रहा है, मतलब फॉल्स ईगो है. तो तभी तो अगर कोई आपको कुछ बोल दे या चैलेंज कर दे, कैसे आपके अहंकार पे आ जाता है, ओ इसकी ये हिम्मत, इतना ये वो ऐसे हो जाता है. या पोजीशन को लेके या इन रिलेशनशिप डायनामिक्स, बट वहाँ से हमें शिफ्ट करना है हायर कॉन्शियसनेस की तरफ, विच विल लीड अस टू लिबरेशन. मीनिंग मैं मोक्ष वाली बात नहीं कर रही हूँ, वो आएगा, वो थोड़ा अलग है, बट यहाँ पे जैसे सेंट्स की कैसे कॉन्शियसनेस होती है, और इवन द वंस हु आर सक्सेसफुली लिविंग दिस लाइफ, जैसे कि एट द एंड ऑफ द भगवद गीता अर्जुन फॉट द वॉर बट विद द राइट कॉन्शियसनेस. सो बिफोर दिस नॉलेज एंड ज्ञान वॉज गिवन टू हिम, वो भी हमारी तरह एक पुअर मेंटल हेल्थ कंडीशन में था, जिसको सही गलत की समझ नहीं थी और अटैचमेंट था अपनी कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस में था, मतलब कि फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स ईगो में था. बट आफ्टर द गीता ज्ञान वॉज गिवन टू हिम, ही फॉट द वॉर एज अ वॉरियर, उसने अपना कर्म किया एज अ वॉरियर. लेकिन कॉन्शियसनेस में जो ड्रास्टिक शिफ्ट था, जो इंटेंशन में शिफ्ट था, that made him successful and that created further good rewards or consequences for him. So that's where we have to make the shift in our identity, in our consciousness, and that's what I mean when I say liberated. हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम सात्विक मोड में काम कर रहे हैं, इन अ मोड ऑफ गुडनेस, तो वो राइट नॉलेज है, वो राइट आइडेंटिटी है. So this is the first part of the introduction, and I would like to conclude with the teaching that is given in the book, ki how can we understand Bhagavad Gita and what it will do to us. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. So we will see in the next session what is the setting of the Bhagavad Gita and how you can read it and make it more easier for you. Okay? Hare Krishna. Thank you.